Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. I hope you're all safe and sound in your homes. Let me tell you one thing, that you have to take care of your parents, your family, your neighbors, everyone that is beside you, behind you, after you, in the surrounding of you. So this is our online lecture that was given to you by National Public School. And you all know that National Public School provides you the opportunity to take care of yourself and stay home and learn whatever you want. Okay, we have started our first term syllabus, as you all know. So before wasting any time, we are going to start our work. As you all know that we have complete our lesson number 1 reading. हम अपने लेसन नंबर 1 की रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारी रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको आ चुकी होगी. सो वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क. As you all know that we have to do our work on the copy of national that was given to you by National Public School. That there it is like this, and we have start it here. Firstly, we ready the page and after that we write the words meaning of lesson number 1. अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे words meaning आपको याद होंगे. Now today we have write word sentences of lesson number 1. It is a very hectic work today because we are going to do the word sentences and also the question answers of our lesson number 1. So as you all know that the date of today is 26th June 2020. So firstly you all have to write here month, that is June 26th 2020. Remember, you have to write a little th over 26, it becomes 26th. At the middle of the page you are going to write the classwork, and at the right corner of the page you are going to write the day, that is Friday. Here it is. Okay, now first of all, here is our topic, and our topic is word sentences. Sentences like this. So our first word we are going to write here, fear. FEAR, fear. fear का मतलब होता है खौफज़दा हो जाना. The Arabs even feared their 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 idols. अरब हत्ता के अपने बुतों से भी डरते थे. Second, idols. The meaning of the idol is बुत. अरब किन की पूजा करते थे? बुतों की. The Arabs worshipped idols. 5 class, remember one thing, you have to do your work in a very neat and clean writing. It looks very amazing and beautiful if you do it in a very neat and clean writing. And be careful, give 1 finger distance after each word. Number 3 is ignorance, and the meaning of ignorance is jahalat. In the days of ignorance, the Arabs were doing evil deeds. Okay, next is number 4.
cruel, C-R-U-E-L, cruel, zalim. Killing or burying, sorry, it would be single R, infant child, was a cruel custom, C-U-S-T-O-M, custom. Number 5, practices, अमल करना, the Arabs were doing evil practices proudly. अरब जो बुरे अमल थे वो बहुत फ़ख्र से करते थे। क्रूअल का मैं ये मीनिंग आपको बताना भूल गई। जालिम, किलिंग और बरिंग इनफेक्ट चाइल्ड वाज अ क्रूअल कस्टम। बच्चों को मारना या ज़िंदा दफन कर देना एक बहुत जालिमाना रवाज था। सो दिस इज़ ऑल आवर वर्ड्स एंड टेंसेस ऑफ आवर लेसन नंबर 1. You have to draw here 2 lines that indicate that we have completed this topic. Okay, after that you have to open next page. First of all, draw margin lines. Like this. After that, we are going to write here topic, question answers. Like this. So our question number 1, what did Arab worship before Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam preach Islam? अरब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की तबलीग से पहले अरब किसकी पूजा करते थे? जी, किसकी पूजा करते थे? You have to write it with me. बुतों की। The Arabs worshipped, रिमेंबर 1 थिंग 5 क्लास। देखिए यहाँ पे आया था डिड। अगर हमने क्वेश्चन में डिड आए, हमने आंसर में वो डिड को ख़त्म करना है तो हमने फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पे आई थी उसको सेकंड फॉर्म बना देना है, क्योंकि डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम जब भी सेकंड मतलब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव से मतलब इंडेफिनिट में लाएंगे, इंट्रोगेटिव से सिंपल सेंटेंस में लाएंगे तो हम डिड को हटा देंगे। तो डिड को हटाने के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म बना देना होता है। तो वर्शिप को मैं बना चुकी हूँ वर्शिप्ड। The Arabs worshipped idols before
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम preached Islam. Question number 2. What were the teachings of Islam? इस्लाम हमें किन बातों की तालीम देता, इस्लाम ने हमें किन बातों की तालीम दी थी? लव, मोहब्बत, पीस, अमन, काइंडनेस, मेहरबानी एंड रिस्पेक्ट और इज़्ज़त वर द टीचिंग्स of Islam. Question number 3. Why did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam visit the old man? 5 class, I am going to write these all questions from the exercise of your टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वहाँ से मैं ये सारे क्वेश्चंस लिख रही हूँ. अगर आप लिखना चाहें तो आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं. वाई डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विज़िट the old woman? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत की तीमारदारी के लिए क्यों गए? देखिए जहाँ पे आ जाता है ना वर्ड वाई का मतलब होता है क्यों, वट का मतलब होता है क्या, व्हेन का मतलब होता है कब या जब. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 क्लास हमेशा पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं. ये बात अपने दिमाग में या अपनी नॉलेज के लिए हमेशा के लिए रख लें कि ये पूरा लिखा जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं देते. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विज़िटेड, अगेन वही बात, डिड को ख़त्म करना था तो मुझे विज़िट को सेकेंड फॉर्म बनानी पड़ी. विज़िटेड दी ओल्ड वुमेन to inquire about her health, उनकी सेहत के बारे में पूछने के लिए. एंड नीड्स इफ़ एनी, और अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो वो बता दें. क्वेश्चन नंबर 4. How did old women change? Question number 4 is how did old women change? बूढ़ी खातून कैसे बदली या उसने अपने आप को कैसे तब्दील किया, क्या ऐसा हुआ था कि उसने अपने आप को चेंज कर लिया था? The old woman changed.
अगेन 5 क्लास, मैंने डिड को ख़त्म करना था, इसीलिए मैंने चेंज को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया मतलब सेकंड फॉर्म बना दी चेंज्ड बिकॉज ऑफ लव एंड काइंडनेस shown by हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, ओल्ड वुमेन ने अपने आप को इसलिए बदला था क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मेहरबानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा मार्जिन लाइंस ड्रॉ करके रखा करें। आज तो बेटा जी मैं भी ये काम करके रखूँगी ताकि मुझे ना फिर बार बार इस तरीके से लाइंस ना लगानी पड़े। ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड एनिमी take out his sword at हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुश्मन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तलवार क्यों निकाली? एंड द आंसर इज़ द एनिमी took out, again 5 class, took is the second form of take. I have to change did over took. The enemy took out his sword to kill हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुश्मन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के इरादे से अपनी तलवार निकाली। आफ्टर द वर्ड यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप ओवर देयर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस segment we have to draw the ending lines. Okay 5 class, we have completed our lesson number 1 completely. आज हमने वर्ड सेंटेंसेस भी कर लिए और आज हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। नाउ यू हैव टू डू इज़, संडे आ रहा है तो आराम से आप इनको याद कर सकते हैं। Another thing, draw 2 lines over every word that was written by marker. मार्कर से जो भी वर्ड राइट किया गया है उस सब के नीचे आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। वर्ड जो राइट किया गया है उसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन के नीचे लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसा नहीं करना आपने। वो तो क्वेश्चंस हैं, दैट वाज रिटन बाय मार्कर ऑब्वियसली। ओके, हेयर वी हैव कंप्लीट आवर वर्क। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट ऑल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको संडे को बैठ कर ये सारा चैप्टर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक, 5 क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।